Hello student, I hope all are you fine. Myself Mukesh Gangwar, your physics teacher from Brahmdas Saraswati Vidya Mandir Senior Secondary School, Bilaspur. Dear student, this video for the class 11th subject physics, chapter number 5, laws of motion. This is the second part of this video is the second part of this lesson. In previous video we are discussed about the force, inertia and type of inertia, inertia of rest, inertia of motion and inertia of rest, inertia of direction. And dear student, and the linear momentum of the body. So today we are discussing about the Newton's laws of motion. Newton's laws of motion. Newton's laws of motion. Dear students, Newton's laws of motion, Sir Isaac Newton made a symmetric study of motion and extended the ideas of Galileo. He arrived at three laws of motion which are called Newton's laws of motion. These laws are as follows. Number 1, dear students, Newton's first law of motion. First law of motion, every body it states first law of motion. This law states that every body continues in its state of rest or of uniform motion in a straight line, unless it is compelled by some external force. Okay students, we can say that every body continues in its state of rest or uniform motion of a straight line unless it is compelled by some external force. कहने का मतलब यह है, यदि कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहना चाहती है और वो यूनिफॉर्म मोशन कर रही है, स्ट्रेट लाइन यूनिफॉर्म मोशन कर रही है तो वो स्ट्रेट लाइन यूनिफॉर्म मोशन ही करना चाहती है टिल नाउ, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड नहीं किया जाए। जैसे सपोज कीजिए हम साइकिल को चला रहे हैं, पेडल को पुश कर रहे हैं, हमने एक बार चलाकर उसको छोड़ दी तो वो हमेशा चलती रहेगी जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना हो। ओके स्टूडेंट्स, इट इज आल्सो कॉल्ड द लॉ ऑफ इनर्शिया and law of inertia. The Newton's first law is also called the law of inertia. Okay student, I hope you are understand the Newton's first law of motion. Every body continue in its state of rest or uniform motion in a straight line unless it is compelled by some external force. Okay, the Newton's first law of motion is also called by a law of inertia. Okay students, so student, these are the example of the Newton's first law of motion. When a horse suddenly start running, the rider falls down backward. आपने देखा होगा जब कोई हॉर्स सडनली रन करना स्टार्ट करता है तो उसका जो राइडर होता है वो पीछे की ओर गिर जाता है। ऐसा क्यों होता है? द न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, हॉर्स रनिंग पोजीशन में आ गया, बॉडी रेस्ट में रहना चाहती है तो इसलिए वो पीछे की ओर गिर जाती है। ठीक है, व्हेन इफ हॉर्स सडनली स्टार्ट रनिंग द हॉर्स फॉल्स बैकवर्ड। ओके स्टूडेंट, डस्ट द रिमूव्ड from a hanging carpet while beating in it with a stick. जब आप किसी कारपेट को डंडे से बीट करते हैं, डंडे से पीटते हैं तो उसके जो डस्ट पार्टिकल होते हैं, डस्ट होती है, वो कारपेट से दूर हो जाती है, निकल जाती है। कैसे? जैसे ही हमने उस पर स्टिक से स्ट्राइक किया, फोर्स लगाया तो जो डस्ट पार्टिकल थे
वो तो मूविंग कंडीशन में आ गए, वो मूव करने लगे, और जो कॉर्पेट है वो हमारी स्टेबल रहती है। इसीलिए ड्यू टू द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, तो डस्ट पार्टिकल कहाँ से, कारपेट से दूर हो जाते हैं और बाहर निकल जाते हैं। When the sack a branch of a tree, its fruit and dry leaves fall down. जब हम किसी पेड़ की ब्रांच को क्या करते हैं, हिलाते हैं, जोर से हिलाते हैं, तो उस पर लगे हुए फल, फ्रूट्स और उसकी जो ड्राई लीव्स होती हैं वो नीचे गिर जाती हैं। कैसे? जैसे ही हमने उस ब्रांच को हिलाना स्टार्ट किया, करना स्टार्ट किया, तो ब्रांच तो मूव कंडीशन हो गई, मूविंग कंडीशन में आ गई, बट जो फ्रूट है, जो लीव्स हैं, वो स्टेबल रेस्ट में रहना चाहती हैं। ठीक है, ड्यू टू द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो इसलिए उसके साथ में रहकर वो क्या होती हैं, ब्रांच से अलग हो जाती हैं और नीचे गिर जाती हैं। Coin falls into the lumber when the card is giving a sudden jerk. आपने क्या किया, एक गिलास पर एक वॉलेट ले लीजिए या ग्लास ले लीजिए, मग ले लीजिए, मग के ऊपर एक कार्ड रखिए, पेपर, और उसके ऊपर कॉइन रख दीजिए। पेपर को आप शक करके खींच लीजिएगा, तो क्या होगा, जो कॉइन है वो पेपर के साथ ना जाकर कहाँ जाएगा, उसमें नीचे ग्लास में जो आपका पॉट है उसमें गिर जाता है। क्यों? क्योंकि जो पेपर है वो तो रनिंग कंडीशन में आता है जब हम उसे फोर्स एक्ट करते हैं, और जो कॉइन है वो रेस्ट में रहना चाहता है, तो इसीलिए वो उस पॉट में गिर जाता है। When a horse running fast suddenly stop the rider is thrown forward. आपने देखा होगा जब कोई रनिंग करता हुआ हॉर्स और सडनली रुक जाता है, स्टॉप करता है, तो उसका जो राइडर होता है वो आगे की ओर गिर जाता है। क्यों? आपने एक चीज़ तो आगे की ओर गिर जाता है, क्यों? ड्यू टू द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो जो हॉर्स होता है वो रेस्ट में आ जाता है, और हमारी बॉडी जो राइडर की, द बॉडी ऑफ राइडर कैन नॉट बी इन द रेस्ट, देन द राइडर इज द ब्रेक फॉरवर्ड। तो इसीलिए जो राइडर होता है वो आगे की ओर गिर जाता है। ठीक है, जैसे आप बस में आप यात्रा कर रहे हो, जर्नी कर रहे हो, तो फिर क्या होता है, बस में अचानक हैवी ब्रेक लगा दिए जाते हैं, तो उसमें जो खड़े हुए यात्री हैं वो आगे की ओर, पैसेंजर आगे की ओर गिर जाते हैं। यही रीजन होता है। ओके स्टूडेंट्स, ए पर्सन गेटिंग आउट ए मूविंग बस और ट्रेन फॉल्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। क्यों गिरते हैं? क्योंकि जो बस होती है उस पर ब्रेक लगाया, ट्रेन में ब्रेक लगाया, तो वह रेस्ट में आ जाती है और हमारी बॉडी रेस्ट में नहीं आती है, तो इसलिए वह आगे की ओर गिर जाते हैं। एंड एथलेटिक्स फॉर ए सर्टेन डिस्टेंस बिफोर टेकिंग ए लॉन्ग जंप। आपने देखा होगा जब कोई एथलेटिक किसी लंब जंप को करना चाहता है तो थोड़ी सी पीछे हटके दौड़ता है और वो अपना लॉन्ग जंप, अपना टारगेट अचीव कर लेता है। ए बॉल थ्रोन द अपवर्ड इन ए मूविंग ट्रेन कम्स बैक इनटू द थ्रोअर हैंड। बॉल जो होती है, अगर कोई भी पर्सन ट्रेन में बैठ के रनिंग कर रहा है, जर्नी कर रहा है, और वो अपने हाथों से ऊपर की ओर बॉल को थ्रोन करता है, तो उसके बाद जो बॉल होती है वो उसके हाथ में आ जाती है, पीछे नहीं जाती, क्योंकि जो ट्रेन के साथ जो उस कंपार्टमेंट का जो पूरा एयर होता है, पूरा एटमॉस्फेयर होता है, वो भी मोशन करता है। ओके स्टूडेंट्स, व्हेन ए bike moves, the bird is striking to its wheels files of tangentially। आपने देखा है कि जब कोई हमारा जो बाइक के जो पहिया होता है उससे जो मड पार्टिकल होते हैं ऊपर की ओर से टेंजेंशियली मोशन करते हैं। सो डियर स्टूडेंट, यू आर अंडरस्टैंडिंग द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन एंड इट्स एग्जाम्पल। Dear student, now is the Newton's second law of motion. Newton's second law of motion, the rate of change of momentum, the rate of change, it states, so dear students,
second law of motion, it states that the rate of change of momentum of a body is directly proportional to the external force applied on the body, and the change take place in the direction of the applied force. This law can be divided into the two parts. The rate of change of momentum is directly proportional to the applied force. Number 2, the rate of the change of the momentum occurs in the direction of the force. Okay, students, then we can say now that the rate of change of momentum of a body is directly proportional to the external force applied on the body, and the change take place in the direction of the applied force. Okay, students, if a body of mass small m, if a body of mass small m moving with velocity b, then their momentum p is equal to mb. P is equal to mb. Differentiating with respect to t on both sides. dp upon dt is equal to m or dB upon dt. Okay, student, we know that the dB upon dt is the acceleration of the body A. So dP upon dt is equal to m into A, and we know that the m into A is equal to F, then dP upon dt is equal to F. Okay, student, then the applied force F is directly proportional to the rate of change of momentum dP upon dt. This is the second law of Newton. Okay, students, F is directly proportional to the ma, and F is equal to k ma. If k is equal to 1, then F is equal to ma. Okay, then the unit of force is equal to kilogram, or unit of acceleration meter per second square, or this is the SI unit Newton. SI unit is equal to Newton, and the dimension of a force m into LT minus 2. Dimension of force MLT minus 2. It is a vector quantity. Force is a vector quantity. Okay, students, I hope you are understanding the Newton's second law. Then the rate of change of momentum of a body is directly proportional to the external force applied on the body, and the change take place in the direction of the applied force. If a body of mass small m moving with velocity b, then their linear momentum p is equal to mb. Differentiating with respect to t on both sides, dP upon dt is equal to m into dB upon dt. We know that the dB upon dt is equal to a, acceleration of the body, then dP upon dt is equal to ma. And the ma is the force, external force applied on the body, then dP upon dt is equal to F, and dP upon F is directly proportional to the rate of change of momentum. The rate of change of momentum of a body is directly proportional to the external force of the body. Okay, student, F is directly proportional to the ma. F is equal to k ma, k is equal to 1, F is equal to ma. This is the force. Force is a vector quantity, and unit of the force kilogram meter per second square. Kilogram mass, unit of mass, and meter per second square unit of acceleration. Then the SI unit of Newton
dimension of the force mlt minus 2. Okay students, I hope you are understanding the second law of motion. Dear student, next impulse. Impulse, a large force acting for a short time of produce a finite change in momentum is called the impulsive force. A large force acting for a short time produce a finite change in momentum is called an impulsive force. For example, a force exerted by a bat while the hitting a wall. तो बैट के द्वारा वॉल पे जितना फोर्स लगता है वही इम्पल्सिव फोर्स होता है, जो कि क्या करता है, वॉल के मोमेंटम में चेंज कर देता है. बिलो ए ऑफ ए हैमर ऑफ ए नेल, हैमर के नीचे नेल लगाओ तो उस पर भी क्या होता है, इम्पल्सिव फोर्स एक्ट होता है. फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए पर्सन व्हेन ही फॉल्स फ्रॉम ए सर्टेन हाइट ऑन ए मार्बल फ्लोर. एक व्यक्ति एक मार्बल फ्लोर पर गिरता है तो उससे अधिक चोट लगती है, अधिक इंजरी होती है, लार्ज इंजरी. एंड एक कच्ची मिट्टी पर गिरता है तो उससे कम इंजरी होती है, कम चोट लगती है. किसके थ्रू? बाय द इम्पल्सिव फोर्स. ओके स्टूडेंट्स, आई होप you are understanding the impulsive force. Then student, impulse of a force is the total effect of a large force which act for a short time to produce a finite change in the momentum. Okay student, impulse A is the total effect of a large force which act for a short time to produce a finite change in the momentum. Okay, then we can easily say that impulse is defined as the product of the force and the time for which the act and the equal to the total change in the momentum. Okay students, impulse is defined as the product of the force and the time for which it acts and it is equal to the total change in the momentum. If capital F force act on the body in the short time dt, then the impulse of the force I is equal to F into dt, F dt. Okay, और I is equal to F into delta t. इस तरह भी हम इसको we can say write this I is equal to F dt. Okay, and I is equal to F into delta t. It is a vector quantity. It is a vector quantity and unit of impulse Newton second. Okay, Newton second. Dimension of impulse, dimension of force mlt minus 2 and dimension of time t is equal to mlt minus 1. Okay student, mlt minus 1. Then the dimension of the impulse mlt minus 1. Okay student, I hope you are understanding the impulse of the force and it is a vector quantity, its unit and its dimension. Dear student, these are the some example for the in your daily life for the second law of motion, Newton's second law of motion and impulse of the force. A cricket player lower his hand while catching a ball. क्रिकेट के प्लेयर को आपने देखा होगा जब वो बॉल को कैच करता है तो अपने हाथों को पीछे की ओर खींच लेता है. क्यों? इम्पल्स इज इक्वल टू एफ इंटू डेल्टा टी, एफ इंटू डेल्टा टी. टाइम हमारे उसके हाथ में बॉल का जो टाइमिंग है, मोमेंट, द टाइम टेकिन द मोमेंट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज द
क्या होता है, बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है, तो F का इफेक्टिव यानी कि फोर्स का इफेक्ट वो कम हो जाता है और उससे कम इंजरी होती है, कम चोट लगती है। ए क्रिकेट प्लेयर lowers his hands while catching a ball. Okay students, a person falling from a certain height receives more injury when he falls on a cemented floor than when he falls on a heap of sand. आपने देखा होगा एक कोई पर्सन सेम हाइट से सीमेंट पे गिरता है, सीमेंट पे कूदता है, सीमेंट पे गिरने से उसे ज़्यादा चोट लगती है, अधिक इंजरी होती है, और वह जब रेत के ढेर पर गिरता है तो उससे कम इंजरी होती है। क्यों? क्योंकि सीमेंटेड जो होती है वो उसको क्या नहीं करता है, डिस्प्लेस नहीं करता है, उसमें टाइम टेकिंग बहुत कम लगता है, तो फोर्स की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है, इसलिए उसे ज़्यादा चोट लगती है। अब जैसे ही वो रेत के ढेर पर कूदता है, गिरता है, हिप ऑफ सैंड पर गिरता है, तो क्या होता है, वो जो सैंड है नीचे की ओर डिस्प्लेस हो जाती है, उसमें टाइम अधिक लग जाता है, टाइम इंक्रीज हो जाता है, तो फोर्स डिक्रीज हो जाता है, इसलिए उसकी चोट कम लगती है। ऑटोमोबाइल्स, कार्स, बसेस, ट्रक्स, मोटरसाइकिल्स, स्कूटर्स आर एक्सेट्रा आर प्रोवाइडेड विद शॉकर। आपने देखा होगा मोटरसाइकिल, कार, बसेस, इनमें सब में और साइकिल्स में सब में शॉकर लगे होते हैं। शॉकर लगे होते हैं, जब ये किसी गड्ढे में जाती है तो जो झटका जो होता है, झटका जो आता है उसको काफ़ी टाइम लग जाता है उसके शॉकर में। जब शॉकर में टाइम लग जाता है तो उसका फोर्स इफेक्टेड कम हो जाता है और उसका जो झटका है वो बहुत धीरे से लगता है, इसलिए इसमें शॉकर प्रोवाइड किए जाते हैं। बफर्स आर प्रोवाइडेड बिटवीन द बोगीज ऑफ द ट्रेन। ट्रेनों के बोगी के बीच में बफर्स लगे होते हैं, वो भी यही वर्क करते हैं, फोर्स को इफेक्ट कम करते हैं और टाइम को बढ़ा देते हैं। चाइना वार्स आर द पैक्ड इज ए स्ट्रॉस पेपर बिफोर द पैकिंग। चाइना के जो बर्तन होते हैं या आप चीनी मिट्टी के जो बर्तन होते हैं उनको पैकिंग करने से पहले किस में, पेपर में लपेट कर रखा जाता है या फिर पुआल के तिनकों में लपेट कर रखा जाता है, जिससे भी या स्ट्रॉस में लपेट कर रखा जाता है जिससे कि वो हिलें डुलें, और या फिर हिलेंगे तो आपस में टकराने पर वो टूट जाएंगे, तो इसलिए वहाँ पर तिनके या पेपर लगा दिया जाता है, इसमें उसका जो फोर्स इफेक्टेड है वो कम हो जाता है। टाइम, फोर्स अगले तक पहुँचने में, नेक्स्ट पॉट तक पहुँचने में टाइम लेता है, और टाइम लेता है तो उसका जो टाइम ज़्यादा होगा तो फोर्स का इफेक्ट कम हो जाएगा, तो इसलिए वो उनको काय में चाइना वार्स आर पैक्ड इन द स्ट्रेस पेपर, स्ट्रो पेपर before is packing. So dear student, I hope you are understanding the force of impulse and its example. Next student, Newton's third law of motion. Newton's third law of motion, it states that to every action there is always an equal and opposite reaction. To every action there is always an equal and opposite reaction. So this is called the action reaction law. कहने का मतलब ये है कि किसी पर हम एक्शन करेंगे तो उतना ही हम पर इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन करेगा। जैसे हम इस फोर्स पे इस बोर्ड पर जितना फोर्स लगा रहे हैं वह बोर्ड भी हम पर उतना ही फोर्स लगा रहा है, और नहीं लगाता तो ये उस तरफ गिर गया होता। ओके स्टूडेंट्स, तो it can be easily says that to every action there is always an equal and opposite reaction. So this is called the action reaction law. Suppose two body A and B of mass, two body A and B, body A and body B is exerted by the force of F of AB and by the force of F of BA. So this two bodies, body A and B, is attract each other, and the force and the body F of AB it is equal to equal and opposite force F of BA. Okay students, this is known as the action reaction law,
and the Newton's third law of motion. Dear student, these are the some example of Newton's third law of motion. Book kept on a table. Book kept on a table, इसका मतलब क्या हो गया? अगर ये डस्टर इस पर रखा हुआ है हाथ पे, तो वो डस्टर जितना फोर्स लगा रहा है तो हाथ भी उस पर उतना ही फोर्स अप्लाई कर रहा है. दिस इज द एक्शन एंड दिस इज द रिएक्शन. ओके. while a walking the press the ground action with the our feet sidely slant or in the backward direction. होता क्या है कि जब हम वॉक करते हैं, चलते हैं, तो जैसे ही हम अपने पैर से अर्थ को, ग्राउंड को पुश करते हैं, तो ग्राउंड भी हमारे पैर पर उतना ही रिएक्शन लगाती है, जिससे कि कारण हम आगे बढ़ जाते हैं. इट इज़ डिफ़िकल्ट टू द वॉक ऑन आइस और स्लिपिंग ग्राउंड और सैंड. तो क्या होता है कि किसी आइस पर, बर्फ़ पे चलना कठिन होता है, स्लिपिंग ग्राउंड पर चलना कठिन होता है और सैंड पर चलना कठिन होता है. क्यों? क्योंकि बिकॉज वी आर प्रेस द ग्राउंड देन द सैंड और आइस और स्लिपिंग ग्राउंड इज नॉट द प्रोवाइड ऑफ द कंपल्सरी रिएक्शन फोर्स. होता क्या है, जब हम किसी ग्राउंड पर, आइस पर चलते हैं या फिर स्लीपिंग ग्राउंड पर चलते हैं या फिर सैंड पर चलते हैं, तो सैंड, स्लीपिंग ग्राउंड और आइस हमको इतना रिएक्शन फोर्स नहीं दे पाता है जितना कि हमें चाहिए होता है. जितना हमने एक्शन लगाया उतना रिएक्शन नहीं आता, क्योंकि सैंड जो होता है वो नीचे को डिस्प्लेस हो जाता है. तो इसलिए हमें यहाँ पर चलने में डिफ़िकल्टी होती है. वाइल स्विमिंग ए पर्सन पासिस वाटर विद द हिज हैंड एंड द बैकवर्ड डायरेक्शन. आपने देखा होगा जब कोई पर्सन स्विमिंग करता है तो वह अपने हाथों से वाटर को पीछे की ओर, बैकवर्ड डायरेक्शन में धकेलता है और वाटर उसको आगे बढ़ा देता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में पुश कर देता है. तो इसलिए उसका जो तैरना है वो पॉसिबल हो जाता है. रोटेटरी लेंस स्प्रिंकलर, इससे क्या होता है, घूमने वाली चकई जो होती है उसमें नोजल लगे होते हैं, बहुत सारे जो फुब्बारा होता है, फाउंटेन होता है. तो इस तरह से फुब्बारे में क्या लगा दिए जाते हैं, नोजल लगा दिए जाते हैं. जैसे ही वाटर निकलता है तो वाटर निकलने के साथ साथ वो रिएक्शन ड्यू टू द न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन वो क्या करने लगते हैं, मोशन करने लगता है. सो डियर स्टूडेंट, वी आर आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द Newton's laws of motion, first law of motion, second law of motion and third law of motion. Okay student.